Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your today's class. So my dear students, let's get started with today's lecture. याद है आप लोगों को कि हमने previous lectures में क्या पढ़ा था? Very good. We studied about the internal structure of Earth. So my dear students, do you remember all the names and the layers of the Earth? Very good. Let's quickly recap them. This is the outermost layer called the crust, and it is divided into oceanic crust and continental crust. Very good. Then comes the lithosphere, asthenosphere. ये किसके parts हैं? ये mantle के parts हैं. Then comes the mantle, which has upper mantle and lower mantle. Then comes the core, which is outer core and inner core. Okay? So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity, and before moving on towards the activity, you have to tell me that how many continents do we have on planet Earth? Do you remember it? But stay tuned, हम इसको एक activity से perform करते हैं. So the activity is about कि आपने क्या करना है? आपने एक लिंक खोलना है और इसी लिंक से हम एक बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप जल्दी से लोकेट कर पाएंगे where are the different continents. So my dear students, here is an interactive map and here are all the oceans and the continents are given. So where is Antarctica? Let's quickly. Here is Antarctica. Very good. Now where is Australia? Here is Australia. And then comes South America. So is this South America? No, we have to move towards south. This is South America. Then comes the North America. Then comes Europe, Africa, Asia. And now you have to click the oceans. Oceans. So where are the different oceans? You can see the pointer. So let's quickly put the Pacific Ocean. This is Pacific Ocean. Sorry, you will drop it here. This is Pacific Ocean. And similarly, you will complete the names of all the oceans. This is Arctic Ocean. This is Indian Ocean. Then comes the Southern Ocean. So this is how you will drag and drop all these. So pause the video and quickly do this activity. You will love doing it. I hope everybody has enjoyed the activity and done it. Now let's quickly move forward towards the presentation. So my dear students, now as you know that there are 7 continents on planet Earth, you have named them all. आपने even oceans को भी point out किया और उनको भी आपने label किया, which was really fun. So my dear students, what if I tell you that कभी आपने सोचा कि ये जितने भी सीज, ओशंस और माउंटेन्स जो और वैलीज जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये कैसे बने? How were they formed? कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? Think about it quickly. कैसे बने होंगे? I told you in the previous lectures that this is all because of the internal structure of the earth. Very good. So ऐसा क्या है हमारे internal structure में? That is what we are going to study today. So my dear students, knowledge 1.4 we are about to study today, which is explore the theory of plate tectonics, and this is 4A part 1 of this lecture. We are going to study about continental drift. तो क्या है ये continental drift? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Quickly open unit number 1 in your geography books, which is structure of earth and types of rocks, and quickly open the page about the theory of tectonics. So my dear students, who आपको पता है कि अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूं कि आपका अर्थ जो है इट यूज्ड टू लुक लाइक दिस बिलियंस एंड बिलियंस इयर्स अगो, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सो दिस इज द प्रेजेंट डे अर्थ विद द 7 कॉन्टिनेंट्स. यस, द डिफरेंस इज कि ये जितना भी लैंड मास था, देयर वर नॉट 7 कॉन्टिनेंट्स, बल्कि एक ही बड़ा सा कॉन्टिनेंट था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया कहते थे. So Alfred Wegener was the first person to tell this or suggest this कि पहले जो है वो कॉन्टिनेंट्स इस तरीके से अलग-अलग 7 नहीं थे, बल्कि there was a super continent
which was called Pangea. And this theory of plate tectonics helps us explain how and why continents moved apart. अब क्यों Pangea जो है वो 7 continents के अंदर डिवाइड हो गया, यही हमें एक्सप्लेन करना है और इसी प्लेट टेक्टोनिक्स की मदद से हम इसके बारे में समझ सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम चीजों को यानी कि ये ब्रेकिंग ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम इस फिनोमेना को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम देते हैं. सो अल्फ्रेड वैगनर ने बेसिकली हमें बताया कि देयर वाज वन कॉन्टिनेंट एंड इट ड्रिफ्टेड अवे, इट ब्रोक एंड इट ड्रिफ्टेड अवे, और उसने इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया. सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द थ्योरी दैट द अर्थ continent have moved over geologic time relative to each other, breaking apart from a single landmass called Pangea. So here in this figure you can see कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि टूट गया 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, और इसको हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया. सो इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं. सो वी विल मूव टुवर्ड्स दिस लिंक, और एक सिमुलेशन की मदद से हम इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले आपका अर्थ दिखता था और किस तरीके से अब जो है वो आपका अर्थ जो है वो नजर आता है. सो हम इसको एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन से देखेंगे. सो हियर इज योर ग्लोब, आप इसको मूव कर सकते हैं. So if I change the time period towards the present day, यानी कि 0 मिलियन ईयर्स, यानी कि अब ये आपका प्रेजेंट डे जो है वो अर्थ आपको नजर आएगा. अगर हम इसको फ्लैट मैप में देखें तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द 7 कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका. सो ये हमारा प्रेजेंट डे अर्थ है. सो इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं. सो अगर मैं आपको कहूं कि हम इसको पीछे लेकर चलते हैं लाइक 20 मिलियन ईयर्स अगो, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको टाइम पीरियड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा और आपको ये भी मूव होते हुए नजर आएंगे. सी किस तरीके से ये तमाम लैंड मास जो है ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मैं कितनी तेजी से आगे कर रही हूं, एंड यू कैन सी what is happening. So some 240 million years ago your earth has a one supercontinent. So this is called Pangea, और ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था. तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि हमारा अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं नजर आता था. ये कॉन्टिनेंट्स, ये लैंड फॉर्म्स हमेशा से ऐसे नहीं थे. they are changing, constantly changing. And this theory is called continental drift. ये अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी. So अल्फ्रेड वैगनर को ये बात कैसे पता चल गई कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था? ये तो एक आइडिया है ना. He wasn't present billions of years ago. So इसका एविडेंस कैसे मिला? इसका एविडेंस फॉसिल से मिला, मैचिंग कोस्टलाइन से मिला, रॉक फॉर्मेशन की स्टडी से मिला, क्लाइमेट एविडेंस से मिला, और कुछ की पीसेस थे जिनको हमने इकट्ठा किया तो हमें पता चला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है. नाउ द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स. सो जब ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था तो आप देख सकते हैं कि जो फॉसिल्स हमें साउथ अमेरिका में मिले वो हमें अफ्रीका में भी मिले. सो जो हमें अफ्रीका में फॉसिल्स मिल रहे हैं वो हमें इंडिया में और एंटार्क्टिका में भी मिले. एंड विच फॉसिल्स वर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया? दे वर फाउंड इन एंटार्क्टिका एंड Africa and then in South America. So that's how they know that billions of years ago it was just one big continent which broke apart. So this is how they knew about the continental drift. अब ये continental drift होता क्यों है इसके बारे में भी हमने जाना है, but before that एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, और ये बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है जिसको हम सिमुलेशन से जानेंगे. So let's quickly move forward towards it. सो यहां हम ग्लोब को देखते हैं. सो 0 मिलियन ईयर्स अगो अभी आपका प्रेजेंट डे अर्थ जो है वो मौजूद है. यू कैन मूव इट, यू कैन एनलार्ज इट, और आप इसको चारों तरफ से घुमाकर देख सकते हैं. अब फन पार्ट क्या है, यहां पे भी आप ईयर्स को उसी तरीके से पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं,
बट द फन पार्ट इज कि आप अपना सिटी, आप जहां पे भी दुनिया में रहते हैं, you will type the name of your city over here. Let's say I will type here Lahore. So let's quickly type here Lahore, Pakistan. So Lahore, Pakistan, and quickly आपकी Lahore, Pakistan की location जो है, the red dot that you see on the map, this is Lahore, Pakistan. Now let's see कि billions of years ago this Lahore, Pakistan was where on the earth? So let's see 370 million years ago. It was not where it is present today. It was somewhere, I don't know. And let's see, billions and billions years, 750 billion years ago, it was somewhere near the water or under the water. So this is how we can say that the earth is not the same. It is constantly in changing. और इसी तरीके से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं और फॉसिल्स की एविडेंस से रॉक्स जो हमें एक जगह मिले वही हमें कहीं और भी नजर आ रहे हैं. दैट्स हाउ वी न्यू कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है. सो दिस वाज अ रियली फन एक्टिविटी दैट वी हैव जस्ट डिड. ये तमाम लिंक्स इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मौजूद हैं. यू कैन गो देयर एंड यू कैन एंजॉय दीज सिमुलेशंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ लिया. ये होता क्यों है? The surface of the earth on which we live is not one continuous layer but consists of many plates. अब यहां पे इंट्रोडक्शन होने जा रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स का. The plates of the earth are not stationary but are in motion at a very slow rate. अब मैं तो आपको सिमुलेशन में तेजी से मूव करते हुए दिखा रही हूं, but this has happened, this drifting took place in billions and billions years. बहुत सालों में जो है ये जो ड्रिफ्टिंग हुई है, ये प्लेट्स की जो मूवमेंट हुई है, इसको बहुत टाइम लगता है. ये प्लेट्स कहां मौजूद हैं? सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स दिस डायग्राम. सो दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट विच इज कॉल्ड द क्रस्ट. अब इसी क्रस्ट के नीचे एक पार्ट होता है विच इज नोन एज लिथोस्फेयर. ये लिथोस्फेयर जो है, ये थोड़ा सा पार्ट इस क्रस्ट के साथ अटैच है, बाकी जो है वो मेंटल के साथ अटैच है. जो पार्ट इसका मेंटल के साथ अटैच होता है उसको हम स्टेनोस्फेयर कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट स्टेनोस्फेयर. और यही पार्ट जो है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये जो है इट इज नॉट स्टेशनरी, ये सॉलिड है बट इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. और यही जो प्लेट्स हैं ये इस लिथोस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है. इसके ऊपर हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ये मूव करती है मेंटल की मूवमेंट के साथ और ये प्लेट्स मूव करती हैं. एंड दैट्स हाउ ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, दिस हैपेंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, physical geography is concerned with studying the natural features of the earth like mountains, rivers, tectonic plates. The theory of plate tectonics explains why the continents look the way they do and why there are earthquakes, volcanoes and mountain ranges, oceans and valleys. So my dear students, यही जो study है जिसकी वजह से हमें पता चला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है, इसी को जब हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कैसे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं, कैसे वॉल्केनोज इरप्ट होती हैं, कैसे माउंटेन्स बनती हैं, कैसे वैलीज बनती हैं. ये तमाम चीजें टेक्टोनिक प्लेट की स्टडी से हमें समझ में आती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्लेट्स जो हैं वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर इनसाइड द अर्थ एंड आवर क्रस्ट इज ऑन द टॉप ऑफ इट. So here you can see the light gray portion. These are the continents. The white portion, these are the oceans. And they are on the top of, ये जो आपको black cracks नजर आ रहे हैं, these are the plates. ये इन plates के ऊपर जो है वो float कर रहे हैं और जैसे जैसे ये plates move करती हैं, which happens very slowly, ठीक है, तो ये साथ साथ जो है वो मूव करते हैं और इसी तरीके से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं. सो नाउ इज टाइम फॉर एन अदर एक्टिविटी. इस सिमुलेशन में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को और कुछ प्लेट की मूवमेंट्स को खुद देख सकेंगे, खुद आप अपनी मर्जी से अपने हाथों से इनको हिला सकेंगे. सो लेट्स क्विकली, ये हमने सिमुलेशन पिछले लेक्चर में भी की थी. लेट्स क्विकली जूम आउट द
स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और अब हम बिल्कुल अर्थ के इंटरनल पोर्शन में चले गए हैं. द टॉप मोस्ट पोर्शन इज कॉल्ड द, what is it called? Crust. Then comes mantle, lower mantle, outer core and inner core. So the lithosphere is here and it is in the form of plates. Asthenosphere के ऊपर ये तैरती रहती है और आपकी crust भी इसी वजह से मूव करती है. अब हम अगर इन प्लेट्स की मोशन को देखें, so here you can see कि हम continental crust जो के mantle के ऊपर है, हम दो continental crust जो के दो प्लेट्स के ऊपर है, हम उनकी मूवमेंट को देखते हैं. दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ये एक दूसरे की तरफ भी जा सकती हैं, अवे भी जा सकती हैं और क्रॉस सेक्शन में भी जा सकती हैं. लेट्स क्विकली मेक देम मूव टुवर्ड्स ईच अदर. ये देखिए मैंने रोक दिया. नाउ दे आर अगेन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अगेन, एंड दिस टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये इतनी तेजी से जो आपको मूव होती हुई नजर आ रही है, ये इतनी तेजी से मूव नहीं होती. It takes millions of years ago to happen this. Okay, now reset it. And again हम दो continental crusts लेते हैं और this time they will move away from each other. Here you can see the time. Moving away from each other. और एक और land form जो है वो बन जाएगा इस तरीके से. Reset it और अब हम इसको किसी और direction में move करेंगे. We will move it like this. So they can move in different directions, towards each other, away from each other, slide past each other. अब अगर हम एक continental crust, ये एक जो है वो प्लेट के ऊपर है, दूसरे के ऊपर एक oceanic crust है. Now what will happen? They are moving towards each other. ये देखें किस तरीके से, because the oceanic crust is dense, it is moving under the continental crust. So this is how the plate movement happens. ये different जो है वो plates के ऊपर जो है आपकी crust जो है वो present है, और movement किसकी हो रही है? basically नीचे से plates की movement हो रही है, जिसकी वजह से आपकी crust के ऊपर जो है वो movement आपको महसूस तो नहीं होती, but millions and billions years ago जब उस time pass करता है तो ये landforms जो है वो देखने को मिलते हैं. Okay my dear students, so the movement of molten rock within the Earth's mantle causes movement of tectonic plates. So we can say that the Earth's crust is solid, that is floating on the upper part of mantle, asthenosphere and lithosphere. So my dear students, अब ये जो different plates है, the yellow ones, जो green है ये आपके continents हैं, जो blue है ये आपके oceans हैं. So these plates, जैसे कि ये Pacific plate है, ये स्पेसिफिक ओशन के नीचे मौजूद है. जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये साउथ अमेरिका और आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के नीचे मौजूद है. Here you can see the African plate. It is under Indian Ocean and Africa. Then the Eurasian plate, ये एशिया के नीचे मौजूद है और एशिया के नीचे और भी प्लेट्स मौजूद हैं. There is Indo-Australian plates. So ये डिफरेंट प्लेट्स के नीचे मौजूद हैं and there are 7 major plates. हर प्लेट को हमने एक नाम दिया है. There are more than 7, but जो मेजर प्लेट्स हैं वो 7 हैं. वो कौन कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. So my dear students, now it's time for an activity जो कि ग्रुप में होगी. Your teacher will distribute the activity sheets which you will cover. So इस एक्टिविटी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा. आपने इसको डिस्कशन के बाद जो है वो कंप्लीट करना है एंड बाय द एंड यू विल लेबल द डिफरेंट प्लेट्स ऑन दिस एम्प्टी मैप. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट दिस वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. It is provided under the description box also. So my dear students, what in your homework activity you will complete the exercise A MCQ 2, exercise B question number 2, and for further practice you can scan the QR code and you will complete the exercise given there for further practice. So my dear students, क्या आज के लेक्चर की समरी है? क्या हमें जो है वो समझ में आती है with the continental drift, with studying the plate tectonics? That plate tectonics is the driving force behind the earthquakes, volcanoes, mountain formation and continental drift. यानी कि जो प्लेट की मूवमेंट है बेसिकली इसी की वजह से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं
और ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ब्रेकिंग अवे, movement of the continents and formation of new landforms, this is all because of the movement of plates. So I was right कि जब हमने इस यूनिट को शुरू किया था, so we discussed कि what is happening inside the earth, you can see on the top of the earth also. So उसकी निशानियां उससे हमें समझ में आती हैं. So I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.